Welcome everyone. I hope my video and audio is clear. So welcome to day 7 of the Gupt Navaratri live discourses by Brahmachariji Parak Om, brought to you by Vedic Sadhana Foundation. So my name is Vikram Shastri, as most of you may already be aware if you have been following the series. Firstly, today is a Monday, so one could be as busy as needed in the myriad set of things that one has to do, and yet you're all here. So it means a lot to have your support. It means a lot that all of you are also performing the sadhana along with us and performing the Dhyan Shlok and Mahakali sadhana on the Tantra Sadhana app. So if some of you are joining in newly, as they say, it's never too late to begin. The good thing is Navratri is still ongoing. The auspicious period is still on. So as they say, today is a good day. So we can definitely begin if we have not already started, and that would be fantastic. Well, I see people are joining, and just to kind of give a minute or two and then invite Brahmachariji to start the session. Today is going to be about Ma Dhumavati, again, another misunderstood, misrepresented Mahavidya. People always think, at least I've heard, that people are scared to do pujan, to do sadhana, to invite the grace of Ma Dhumavati, whether women should do or not, whether pregnant women can even perform sadhana or not, and so on and so forth. I'm sure all of these kind of questions could be there in many of our minds, which I'm sure will be put to rest once we hear Brahmachariji speak today. And if by the way, if at all you have not performed Ma Chinnamasta's Dhyan Shlok in the Tantra Sadhana app, please do so today before 12 o'clock. And remember, today till 12 a.m. it is as per the Navratri. Today is Ma Chinnamasta, who has taken place in the secret shrine on the app. So please go ahead and perform your Dhyan Shlok if you haven't already. And as I was sharing yesterday, each of the Mahavidyas, there are obviously 10 that's why they are called Dash Mahavidyas in the app as well. Each Mahavidya has their own world. Each Mahavidya has their own unique special sadhana. Now, for Ma Chinnamasta, it is Khandmunda sadhana. I'm sure many of you may know what Khandmunda sadhana is. It is the sadhana where you actually offer your body parts, your body, mind, and probably the soul to Ma, right? Where you actually chop off the different parts of the body and offer to Ma. So when Swamiji asked us to implement this, the question came, how do you go about showing this, where the character in the app shows actually cutting off each of the portions of the hand? And since, again, with animation, with graphics, anything is doable, provided we have a lot of time, a lot of resources, a lot of investment as well, which is needed. With a paucity of all of this, how to even showcase that? And not only to showcase it, it's not just a movie or a scene, but the sadhak who is using the app must feel it is their own body part that is being offered. So it became quite a challenge, which we hopefully have solved it in a way where you, when you come to Ma Chinnamasta sadhana, you will enjoy the whole experience. Of course, Swamiji will be guiding us step by step in the sadhana. And out of all of the sadhanas that are there, it is this one that is typically done manasik. Every other sadhana one could do in the physical world, but this is typically done manasik, but in a way where we really feel that we are offering the body parts. The challenge there, especially I'll take only a minute more, was to, at the end, how do you show the head getting cut off? And you are seeing from the character. So how would you show that? It became quite a challenge. So we have had some interesting ways to implement this particular sadhana. So I urge you all. I know many of you are already
aggressor on the path of sadhana. You're already in Tripura Sundari's world, and will be starting Sri Yantra Puja very soon. And thereon, you will be going on forward. For those of you who are in Matara world, Ma Kali world, please continue. I think each sadhana is very, very unique. And with the guidance of Swamiji and the grace of Ma, we will all bask in the glory and invite grace into our lives. So, having said all this, I welcome you again to today's session. Brahmachariji, welcome, and we shall start off. Thank you. Jai Shri Ri. थैंक यू सो मच विक्रम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है देवी माँ धूमावती के सेशन में, जहाँ पर सातवीं महाविद्या माँ धूमावती के साथ आज हम उनकी धारणा करेंगे, उनके स्वरूप के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करेंगे और माँ धूमावती अंततः क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई भ्रमणाएं, उनके साथ जुड़ी हुई ऐसी कुछ मान्यताएं जो जिसमें कोई वजूद नहीं है, जिसमें कोई अ, सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, कोई सत्व नहीं है, उन मान्यताओं के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इन्वोकेशन। तो हम सब हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर देवी माँ को प्रार्थना करेंगे कि हमें आशीर्वाद दे और आज के इस सेशन में उनकी कृपा बनाए रखी। ओ गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपये श्रियम्। ओम श्रीमात्रे नमः। इदं गुरवे इदं नमः। तो आज ये दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर हम ये करते हैं कि हर एक सेशन के एंड में कुछ सवाल लेते हैं, बट यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एन आंसर। एक ऐसा प्रश्न जो हमें हर जगह पर बार बार पूछा जाता है, वैदिक साधना फाउंडेशन के प्रत्येक पेजेस के ऊपर, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, कोई भी वीडियोस हो जहां पर माँ धूमावती के बारे में बात हो रही हो, हर जगह पर ये एक प्रश्न आता ही आता है और इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब ये प्रश्न जो है वो मुझे याद हो चुका है कि क्या गृहस्थ, और उसमें भी एक महिला जो शादीशुदा है, जो वैवाहिक है, क्या वे ये साधना कर सकती है? क्योंकि माँ धूमावती का स्वरूप एक विधवा का स्वरूप है और लोगों ने जो भ्रम दिमाग में घुसाया हुआ है कि एक विधवा की पूजा एक विवाहित स्त्री जो है वो कैसे कर सकती है, वैवाहिक जीवन में रहकर एक युगल जो है, कपल, वो कैसे माँ धूमावती की उपासना कर सकते हैं, और अगर वो करते भी हैं तो भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक अ, गरीबी का भाव, असमृद्धि का भाव, अम, ऐश्वर्य चला जाना, या तो फिर स्त्री का विधवा हो जाना, इत, इतनी सारी भ्रमणाएं, इतनी सारी गलत बातें सुनने को मिलती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं माँ धूमावती को अब लोग देवी माँ नहीं मानते, जो सबसे ज्यादा दुख की बात है। एक माँ जो साक्षात महाविद्या है, एक माँ जिनका स्वरूप 10 महाविद्याओं में समाविष्ट है, एक माँ जो साक्षात देवी माँ सती के माध्यम से उत्पन्न हुई, एक माँ जिन्होंने स्वयं आदि शक्ति बनकर स्वरूप धारण किया, हम उन्हीं को अब एक पॉजिटिव स्वरूप नहीं मानते। मैं बहुत ही पीड़ा के साथ ये विधान बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये विधान मैंने बहुत जगहों पर सुना भी है और इतने सारे विद्वानों के मुख से सुना है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों ये बोला जाता है इस तरीके से। शास्त्र को, शास्त्र का गलत मतलब निकालकर, उसका गलत अर्थ निकालकर जितना रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें से एक प्रोमिनेंट विधान ये है कि देवी माँ धूमावती
एक ऐसा स्वरूप है जो कहीं न कहीं आपके जीवन में दारिद्रता लेकर आता है, आपके जीवन में आँधी लेकर आता है, आपके जीवन को श्मशान बना देता है। सबसे घटिया बात जो मैंने आज तक सुनी है, वो ये है कि देवी माँ धूमावती जो है वो एक काइंड ऑफ पिशाचिनी है। क्या बात कर रहे हो आप? कोई भी बालक, कोई भी संतान अपनी माँ के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है? किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े, ठीक है। बिना शास्त्र पढ़े आप ऐसे क्लेम कर रहे हो, जिस क्लेम में कोई भी वजूद नहीं है, जिस क्लेम का कोई सिर-पैर नहीं है। इतना सफेद तरीके से झूठ बोला जा रहा है देवी माँ के बारे में कि अब तो इसी के साथ मुझे शुरुआत करनी पड़ी। इसी कारण से मुझे यहाँ से शुरुआत करनी पड़ी। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न मुझे पता है कि लास्ट में ही आने वाले थे और हर बार आते हैं, तो इस बार भी कोई अलग नहीं होने वाला था सेशन। किंतु जब पहले ही भ्रमणाओं से निकल कर आप देवी माँ के और समीप जाने का प्रयास करेंगे ना, तब आप समझ पाएँगे कि उनका स्वरूप क्या है। अन्यथा भ्रमणाओं के साथ पूजा नहीं हो सकती। भ्रमणाओं को मन में रखकर देवी माँ की साधना हो नहीं सकती। झूठ को मन में बसाकर देवी माँ की उपासना हो नहीं सकती। इसलिए पहले उस मिथ्या भाव को निकालना बहुत ज़रूरी था, उस झूठ को निकालना बहुत ज़रूरी था। क्यों माँ जो है वो दिव्याति दिव्य है? क्योंकि देखिए सब पूरा विश्व जो है, ये जगत वो द्वैत से बना हुआ है, ड्युअलिटी से बना हुआ है। यदि प्रकाश है तो अंधकार भी है, यदि सूर्य है तो चंद्र भी है, यदि सुख है तो दुःख भी है। इतने सारे द्वैतवाद से हमारा जीवन भरा हुआ होता है कि कई बार एक सीसॉ होता है ना, वही ये पूरी ज़िंदगी जो है वो बन जाती है हमारे लिए। ड्युअलिटी से ये विश्व पूरा भरा पड़ा है। तो ऋषि मुनियों ने ये देखा कि यदि ये विश्व द्वैत से भरा हुआ है, तो क्या ये संभव है कि लक्ष्मी माँ का जो एक दूसरा स्वरूप है, जो काइंड ऑफ उनका एक अपोजिट स्वरूप माना जाए, वो भी एग्जिस्ट करता हो? क्या ये संभव है कि उस स्वरूप की पूजा उपासना हो पाए, साधना हो पाए? और तब जाकर देवी माँ धूमावती के बारे में गहराई से ऋषि मुनियों के द्वारा उनके तपोबल के माध्यम से, उनकी साधना के माध्यम से धीरे 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 जो है वो हमें जानकारी प्राप्त होती गई, उनकी साधनाएं बाहर आती गई। जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये स्वरूप जो है वो इस तरीके का है, उनके मंत्र जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, उनकी साधनाएं इस तरीके से काम करती हैं, वैसे ही उन्होंने उस स्वरूप को भी साध लिया। देयर इज अ ब्यूटीफुल लाइन, एक कहावत है हमारे में कि जब आप शत्रु से युद्ध ना कर पाए ना, तब शत्रु को अपना मित्र बना लीजिए। देवी माँ धूमावती के बारे में यही लाइन लागू होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक पीड़ित होते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि इसके बारे में हम फरियाद नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं कि जीवन में क्या नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि गरीबी है जीवन में। हम ये नहीं कहना चाहते कि जीवन में दारिद्रता है। इनका सॉल्यूशन लाया जाए। यदि गरीबी है जीवन में, यदि असमृद्धि है जीवन में, तो ऐसे कौन से स्वरूप की उपासना की जाए जो साक्षात प्रकट होकर उस गरीबी को अपने साथ लेकर जाए? जो स्वरूप ही अपने आप में इतना विकराल हो, इतना भयावह हो कि जो असमृद्धि है, वो भी वहां से डरकर भाग जाए। ये स्वरूप ही अपने आप में इतना दयालु हो कि वो देवी माँ आकर आपके जीवन में जितनी भी दारिद्रता है, जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, जितनी भी गरीबी है, जितनी भी असमृद्धि है, वो अपने भीतर समाहित कर ले, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर कोई आँच ना आने दे। अपनी संतान के ऊपर किसी प्रकार की हानि ना आने दे, कोई नुकसान ना होने दे। महादेव ने हलाहल विष का पान किया सृष्टि को बचाने के लिए। वैसे ही माँ धूमावती एक ऐसा स्वरूप है जो अपनी संतान के जीवन में आकर उनकी असमृद्धि का पान कर लेती हैं। उनकी गरीबी रूपी जो एक हलाहल है, विष है, उसका पान कर लेती हैं। सो
देखिए, ओरिजिन की कथा जो है वो यहाँ से ही शुरू होती है कि एक बार जब महादेव के ऊपर देवी माँ को क्रोध आया, तो उन्होंने धूमावती माँ का स्वरूप धारण कर महादेव को निगल लिया। तो बाकी की सारी महाविद्याओं के अपने अपने शिव हैं। कल ही हमने बात की देवी माँ छिन्नमस्ता जो है उनके शिव साक्षात कबंध शिव हैं, जिनका धड़ सिर से अलग है, वो उनके शिव हैं, कबंध। किंतु एकमात्र महाविद्या देवी माँ धूमावती ऐसी माँ है संपूर्ण 10 महाविद्याओं में जिनके कोई शिव नहीं है, क्योंकि वो अपने ही शिव को निगल चुकी है। यहाँ पर इसी एक घटना के कारण ये भ्रमणा जो है वो फैलना शुरू हुई कि विधवा जो एक स्वरूप है उनकी उपासना विवाहित स्त्री जो है वो नहीं कर सकती। किंतु यहाँ पर शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि शिव जो है वो देवी माँ से अलग हो गए। हालांकि महादेव को निगल जाने के कारण उनका स्वरूप जो है वो विधवा का हो गया, लेकिन शिव उनके भीतर समाहित हो चुके थे। कहीं पर भी शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि शिव जो है वो शक्ति से अलग हो गए। कहीं पर भी तंत्र शास्त्र ने ये नहीं कहा कि देवी माँ धूमावती से कोई संबंध जो है वो शिव का नहीं है। कहीं पर भी नहीं कहा गया ये बात। जैसे शिव को शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही शक्ति को भी शिव की आवश्यकता हमेशा रहेगी रहेगी रहेगी। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। और जो द्वैत की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्युअलिटी का एस्पेक्ट पुरुष और प्रकृति ही है, मेल और फीमेल। ये एक ऐसा स्वरूप है जहां जिनके भीतर शिव समाहित हो चुके हैं, एक रूप हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं संपूर्णतया। ये एक ऐसा स्वरूप है जो अपने आप में स्मशान वैरागी है, क्योंकि शिव स्मशान वैरागी थे। और शिव जिनके भीतर समा गए, उनके भीतर तो वैराग्य आना तय है। जिनके भीतर शिव समा गए, वो संसार से अलिप्त होकर ही रहेगा। जिनके भीतर शिव समा गए, जो स्वरूप साक्षात शिव को निगल गई, अर्थात उनको जिन्होंने धारण कर लिया, शिव को जिन्होंने अपने भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाहित कर लिया, धारण कर लिया, उतार लिया, वैसा स्वरूप, वैसी शक्ति हमेशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रचंड वैराग्य का भाव तो लेकर ही आएगी। और अध्यात्म का मूल ही ये है, वैराग्य का भाव। जब तक वैराग्य नहीं है, तब तक इच्छाओं का प्राकट्य होता रहेगा। जैसे जैसे वैराग्य का भाव प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे इच्छा जो है वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी। जैसे वैराग्य का भाव उत्पन्न होगा, वैसे वैसे आपके भीतर कहीं ना कहीं संसार से लिप्त होने की भावना ज्यादा प्रबल होती जाएगी। ये धूमावती माँ का एक एसेंस है। शास्त्रों ने कहा कि धूमावती माँ को 3 अलग अलग नाम दिए जाते हैं शास्त्र के हिसाब से। निरृति एक नाम है, दूसरा नाम दारिद्रा, तीसरा नाम अलक्ष्मी। किंतु ये स्वरूप कभी भी आपके जीवन में अलक्ष्मी लेकर नहीं आता या फिर असमृद्धि लेकर नहीं आता। यदि आप किसी भी स्वरूप को माँ के भाव में देख रहे हैं, माँ के स्वरूप में पूज रहे हैं, वो स्वरूप आपके जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। खास करके महाविद्याओं के स्वरूपों की बात हो रही है। क्यों उनको अलक्ष्मी कहा गया? क्योंकि वे लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन है। कई कथन के हिसाब से कई जगहों पर उनके लक्ष्मी माँ की उन्हें सगी बहन माना गया है, बड़ी बहन माना गया है, इसलिए उन्हें ज्येष्ठा भी कहा गया। संस्कृत भाषा में बड़े भाई के लिए शब्द है ज्येष्ठ भ्राता, और बड़ी बहन के लिए शब्द है ज्येष्ठा। तो जब लक्ष्मी माँ का एक प्राकट्य हुआ, उसी समय पर अलक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ, क्योंकि द्वैत प्रकृति की मैं जो बात कर रहा हूँ, ड्युअलिटी की, वो साथ साथ में चलती है हमेशा। ऋषि मुनियों ने उस स्वरूप को साध लिया ताकि जीवन में कभी असमृद्धि रहे ही ना। लक्ष्मी माँ का प्राकट्य तो हो ही, किंतु जीवन में कभी अलक्ष्मी का प्राकट्य ना हो, उसके लिए भी उनकी उपासना की जाती है। मैंने जो कहावत कही कि जब आप
शत्रु से युद्ध ना कर पाओ, तब उन्हें मित्र बना लेना चाहिए। कौटिल्य थे हमारे जो प्रखर अर्थशास्त्री, चाणक्य, उनके द्वारा भी सिमिलर एक विधान जो है वो कहा गया। साम दाम दंड भेद की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं इसी स्वरूप से एक उसके बारे में जानकारी की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। जो हमारा चतुर्मास है, ऐसे 4 महीने जहां पर देवशयनी एकादशी रिसेंटली गई, इस समय पर साक्षात जो भगवान विष्णु है वो शयन में चले जाते हैं। पूरे वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जहां पर भगवान विष्णु शयन में होते हैं, और उसी समय पर अलग अलग शक्तियों का प्राकट्य होता है। जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं, उसी समय पर अलक्ष्मी अर्थात जो माँ धूमावती है, दारिद्र्या, उनका प्राकट्य हो जाता है। क्योंकि जब साक्षात विष्णु चले गए, तब संसार से रजस चला जाता है, राजसिक भाव चला जाता है। विष्णु रिप्रेजेंट्स राजसिक गुण, द पैशन। हमारे भीतर जो एक राजसिक गुण है, रजस का गुण है, वो भगवान विष्णु उन्हें डेपिक्ट करते हैं। और जब साक्षात विष्णु ही चले गए शयन में, जब विष्णु भगवान ही योग निद्रा में चले गए, जब वे ही साक्षात सो गए, तब इस सृष्टि को चलाने के लिए उतनी ही एक इक्विवेलेंट शक्ति चाहिए जो उस समय पर भगवान विष्णु का उत्तरदायित्व निभा पाए। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि ये 4 महीनों के दौरान साक्षात दारिद्र्य की पूजा करते हैं, देवी माँ धूमावती की पूजा करते हैं, ताकि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी अलक्ष्मी आए ही ना, हमारे जीवन में कभी दारिद्रता अथवा गरीबी का प्रवेश ही ना हो। और यहाँ पर सिर्फ पैसों की गरीबी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक बहुत ही ओपन माइंडेड कन्वर्जेशन हो रही है, मन से होते हैं। पैसों से तो बहुत सारे लोग अमीर हो सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन मन उनका इतना संकुचित होता है कि उनको देखकर लगे कि इतना पैसा क्या काम का। ये जो गरीबी है, जहां पर आप दया भाव, जहां पर आप मात्र स्वहित के बारे में सोच रहे हो, स्वार्थपूर्ण विचार कर रहे हो, वो भी मानसिक गरीबी का एक लक्षण है, एक क्वालिटी है, एक ऐसा लक्षण जिसे साधना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो उस गरीबी को भी अपने अस्तित्व तक ना पहुंचने देने के लिए ऋषि मुनियों ने उन 4 महीनों के दौरान, उस चतुर्मास में, देवी माँ धूमावती की उपासना का विधान जो है वो लाया। इन्हीं 4 महीनों में जो वाल्मीकि कृत रामायण है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, उसमें भी ये उल्लेख प्राप्त होता है कि भगवान राम ने भी देवी माँ सीता की खोज रोक दी थी। इस कार्य के दौरान, इस समय के दौरान रोक दिए जाते हैं। उसका रीजन ये नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि नहीं अपने आप में ऐसा विकट होता है। आप देखिए, चातुर्मास बारिश का मौसम होता है, ये 4 महीने बहुत बारिश होती है, और इसी बारिश के कारण जब भगवान राम भी गए थे दक्षिण तट पर, उन्होंने भी वानरों को कहकर सीता माँ की खोज रोक दी थी। क्योंकि एक तो समुद्र के किनारे थे, किनारे पर थे, तट पर थे, जल का जो स्तर है वो धीरे 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 इतना बढ़ता जा रहा था, पता ही नहीं था कि कब बाढ़ आ जाए, कब तूफान आ जाए समंदर में। तो ये जो अनिश्चितता है, इस अनिश्चितता से बचने के लिए, जीवों को बचाने के लिए देवी माँ धूमावती की उपासना की जाती है। मैंने कल या परसों शायद कहा था, धूमावती जो है वो धूम अर्थात धुएं को दर्शाती हैं। एक मेटाफोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, इस मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ध्यान से देखेंगे जो अनिश्चितताएं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है,
कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये जो द्वैतवाद है, ये जो अनिश्चितता से हम भरे हुए होते हैं, इसी कारण से कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे जीवन को दुष्कर बना देते हैं। यदि हमारे मन में, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, अनिश्चितता हो ही ना, किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी हो ही ना, इतनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाए कि जीवन में क्या करना है, क्या पर्पस है हमारा, क्या इंटेंशन है हमारे जीने का, हमारा क्या गोल है, हमें किस हेतु के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के मामले में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के मामले में हो। यदि ये एक क्लैरिटी आ जाए जीवन में, तो पूरा जीवन जो है वो सुगम हो जाता है। और देवी माँ धूमावती उसी अनिश्चितता के बादलों को, धुएं को हटाने का काम करती है। वो आपको शार्प इंटेलेक्चुअलिटी प्रदान कर देती है, इतनी शार्पनेस आपको दे देती है कि आप कभी भी जीवन में दुविधा में ना रहो। जीवन में आपको निर्णय लेने से पहले 5 बार सोचना ना पड़े कि ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ये जो शार्पनेस है, ये जो माइंडफुलनेस है, ये जो अवेयरनेस है, वो माँ धूमावती के द्वारा प्रदान की जाती है। और यदि ये समय खंड जो 4 महीनों की हम बात कर रहे हैं, चातुर्मास की बात कर रहे हैं, यदि ये अशुभ होता, या तो फिर इसमें दोष लगते होते, या तो फिर इस समय खंड के दौरान दैवीय शक्ति का प्राकट्य संभव ना होता, तो विचार करके देखिए, जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं, उसके तुरंत बाद श्रावण का महीना आ जाता है, साक्षात शिव प्रकट हो जाते हैं। जैसे कह रहे हो कि आप शयन में जा रहे हो विष्णु, हे श्री हरि, किंतु आपका उत्तरदायित्व निभाने के लिए मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। तो यदि ये समय बुरा होता, यदि ये समय अशुभ होता, यदि माँ धूमावती का प्राकट्य अशुभ होता, तो महादेव साक्षात उस समय पर क्यों प्रकट होते? 1 महीने के लिए ये श्रावण मास जो है वो चलता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी, भगवान गणपति का प्राकट्य, माँ की संतान, अपनी संतान। उसके बाद नवरात्र, शारदीय नवरात्र, जो इस साल 12 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, 22 सितंबर से माँ प्रकट हो जाती हैं। ये 3 बड़े स्वरूप जो हमारी प्रमुख धाराएं हैं। मैंने पहले दिन पर 5 धाराओं के बारे में बात की थी, 5 मार्गों के बारे में बात की थी। शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और सौर मार्ग, अर्थात सूर्य का मार्ग। इनमें से 3 प्रमुख धाराएं इन्हीं 4 महीनों के दौरान स्थापित हो जाती हैं भूलोक पर, धरा पर। महादेव के द्वारा जो आगमन होता है उनका, उससे शैव जो एक ऊर्जा है वो स्थापित हो जाती है। तत्पश्चात गाणपत्य ऊर्जा स्थापित हो जाती है भगवान गणेश के आगमन के साथ। और नवरात्रि के माध्यम से शाक्त ऊर्जा जो है वो स्थापित हो जाती है। 3 प्रोमिनेंट एनर्जीज जो है वो इसी समय काल के दौरान, इसी समय खंड के दौरान इस भूलोक पर आकर अ, अपना उत्साह दर्शाती है, अपने सृजन के प्रति, अपने निर्माण के प्रति एक जिम्मेदारी के साथ स्थापित हो जाती है, ताकि लोक कल्याण हो सके, धर्म का कल्याण हो सके। और इस समय के बाद माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाती हैं दीपावली के दिन, जिसे कहा गया है काल रात्रि। अब आप इस शब्द को देखिए, दीपावली की रात पूरे वर्ष में सबसे अंधकारमयी रात्रि मानी गई है। उस रात्रि को जो अंधकार होता है, जो अंधेरा होता है अवकाश में, आकाश में,
वो बहुत ही ज्यादा घना होता है, घनघोर होता है। और उसी समय पर उस दिन को कहा गया माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिन, क्योंकि अंधेरे से ही जो है वो साक्षात ऐसी ऊर्जाएं आपको बाहर लेकर आती है। ये प्रकाश का जो पर्व है उसे काल रात्रि कहा गया है। और ये वो रात्रि है जिस रात्रि के ऊपर एक साधक के द्वारा किसी भी प्रकार की साधना की जाए, वो साधना जरूर फलीभूत होती है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, त्वम श्रीस्त्वम ईश्वरी, त्वम ह्रीस्त्वम बुद्धिर्बोध लक्षणा। पूरे वर्ष में 4 महारात्रियां आती हैं: दीपावली, होली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। इनमें से भी जो प्रचंड रात्रि कही गई, काल रात्रि कही गई, सबसे महाशक्तिशाली रात्रि कही गई, वो है दीपावली की रात, जहां पर देवी माँ धूमावती विदा लेती हैं और माँ लक्ष्मी जो है उनकी छोटी बहन, उनका आगमन होता है। तो ये कैसे संभव है कि देवी माँ धूमावती का स्वरूप अशुभ है? ये कैसे संभव है कि माँ धूमावती के कारण जीवन में आप एक अनिष्ट का भोग बनेंगे, आपके जीवन में अनिष्ट घटनाएं होंगी? थोड़ा सा हमें अपनी विचारधारा के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। समाज की जो मानसिकता है उसे तो शायद हम नहीं बदल पाएंगे, और वो 1 या 2 इंसान का काम नहीं है बदलने का, किंतु एटलीस्ट स्वयं की मानसिकता को बदलेंगे ना। खुद थोड़ा सोच विचार कर, मनोमंथन कर, अपने आप का समुद्र मंथन कर, उससे अगर रत्न निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन में कोई भी माँ कभी भी अशुभ नहीं होती। इतनी फालतू बातें की जाती हैं कि माँ धूमावती की साधना करने से आप उनके गण को आकर्षित कर लेंगे, पिशाचिनियां आ जाएंगी, यक्षिणियां आ जाएंगी और आपको परेशान कर देगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अच्छा काम करके आए, सही काम करके आए, और उसके माँ बाप उसे ये कहे कि तूने ये काम किया ही क्यों, तूने अच्छा काम किया ही क्यों, क्योंकि हमने आपको जन्म दिया है गुंडागर्दी करने के लिए, हमने आपको जन्म दिया है गुंडा बनने के लिए, बदमाश बनने के लिए। आज तक मैंने एक भी माँ बाप से ये विधान नहीं सुना। तो यदि आप माँ की उपासना कर रहे हैं, तो माँ आपको फल देने की बजाय आपको आकर डराए डराने का काम करेगी, आपको भयभीत करने का काम करेगी। इसमें ना ही सिर्फ हमारी मूर्खता व्यक्त हो रही है, किंतु यहाँ पर हम धर्म के, अध्यात्म के मूल सत्व को ही भूल चुके हैं। तो इसी एक क्लैरिटी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। एंड आई रियली होप कि आज जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, वो इस क्षण के बाद देवी माँ के प्रति कोई भय नहीं रखेंगे अपने मन में, किसी प्रकार का डर नहीं रखेंगे। और यदि कोई आपको कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा है कि देवी माँ धूमावती की उपासना नहीं करनी चाहिए, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सामने आर्गुमेंट कीजिए। कई लोग होते ही नहीं है जिनके सामने आर्गुमेंट हो आप कर पाए, या फिर उनको सुधारने का भी प्रयास किया जाए। आप मौन भाव में रहकर अपना कार्य जारी रखिए, अपनी साधना जारी रखिए। कभी ना कभी एक समय तो ऐसा आएगा जब आपकी साधना का तेज, आपकी साधना का फल मात्र आप नहीं, मात्र आपके परिवार के सभ्य नहीं, किंतु पूरा समाज देखेगा। और उस समय पर यही सभी लोग जिन्होंने आपका विरोध किया था, जिन्होंने आपको डराया था माँ के नाम पर, यही लोग आकर पूछेंगे कि आखिर आप ऐसी कौन सी साधना कर रहे हैं जिसके कारण आपका तेज इतना बढ़ चुका है, आपका ज्ञान इतना बढ़ चुका है, आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी है। उसी समय पर यही लोग आकर ये पूछेंगे। तब वो समय होगा जब आप ये कह पाओ कि आपने जिन भ्रमणाओं में पूरा जीवन बिताया,
मैंने उन्हीं के सानिध्य में रहकर उनकी कृपा प्राप्त की। मैंने उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने जीवन में उस स्वरूप को धारण कर लिया, देवी माँ धूमावती को धारण किया। दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू। We don't need to argue. We don't need to fight with anyone. We just need to keep going. We just need to keep doing our sadhana. मत पड़िए किसी भी प्रकार के वर्बल फाइट्स में। सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर बनने की भी जरूरत नहीं है। परख जी ने ये कहा था, ये स्वरूप अच्छा है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में ये क्लैरिटी लेकर चलिए और बाकी माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका सच और देवी माँ का महातेज अपने आप विश्व तक पहुंचेगा। आपको बोलने भी नहीं जाना पड़ेगा किसी को। मात्र आपको देखने मात्र से लोग ये जान पाएंगे कि आपने क्या किया है। आपके मुख से एक विधान का उच्चारण भी नहीं होगा, किंतु लोगों को पता होगा कि आप कितने बड़े उपासक हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ देवी माँ धूमावती। सो इसी के साथ विल स्टार्ट टुडेज विजुअलाइजेशन। थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाइए और माँ के साथ जुड़ने के लिए, माँ के साथ एकाकार होने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दोनों हाथों को गोद में रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को पालकी लगाकर बैठ जाइए। यदि कुर्सी पर हैं तो पैरों को क्रॉस कर दीजिए। इससे ऊर्जा का बहाव जो है वो आपके शरीर के भीतर ही रहे। शांत होने का प्रयास कीजिए। अपनी दुविधाओं को, अपने संशय को थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए। विचारों से भागने की जरूरत नहीं है। एक साक्षी भाव के साथ उन विचारों को देखिए। कौन से विचार आ रहे हैं मन में? अच्छे, बुरे, सही, गलत, किसी भी प्रकार के विचार के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मन का कार्य है भागते रहना। आपका कार्य है ध्यान केंद्रित करना स्वयं के ऊपर। क्योंकि शास्त्रों ने मन को संज्ञा दी है मरकट की, अर्थात वानर, बंदर, मंकी। तो मन का कार्य है उछल कूद करना। वो कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ सकता। उसे अपना कार्य करने दीजिए और आप मात्र इस धारणा के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। चाहे कैसे भी विचार आ रहे हो, उससे मन में अपराध बोध नहीं लाना है, गिल्ट नहीं लाना है। यदि ये संसार ही देवी माँ का बनाया हुआ है तो विचार चाहे अच्छे हो या फिर बुरे हो, देवी माँ के ही दिए हुए हैं। ऐसा मानकर जब आप अपना जीवन जीना शुरू करेंगे तब कभी भी अपराध बोध में नहीं रहेंगे।
उपासना के दौरान भी, साधना के दौरान भी आप बस एक ही प्रयास कीजिए, माँ के ऊपर, उनके स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करने। एक क्षण ऐसी आती है जब आप इस द्वैतवाद से निकलकर, अच्छे और बुरे के भाव से निकलकर, सिर्फ एक आत्मा बनकर, चेतना बनकर स्वयं का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सेल। मन के उस कोने में जाने का प्रयास कीजिए जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। वो कोना इसके कारण आप जीवन में खुश नहीं हैं। वो विचार, वो घटना, वो परिस्थिति जिसके कारण आप शायद दुखी हैं, वो व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, आपके निर्णय हो सकते हैं, या फिर परिस्थिति, चाहे घर की परिस्थिति हो या फिर बाहर की। उस स्थिति को विजुलाइज कीजिए और उसे एक स्वरूप दे दीजिए, झोंपड़ी का, एक ऐसी कुटिया जो अत्यंत जर्जरित है, इसकी छत पक्की नहीं है, घास का ढेर उसके ऊपर लगा हुआ है। ये झोंपड़ी इतनी क्षीर्ण जीर्ण हो चुकी है कि एक छोटे से तूफान से ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है। शायद 20 फीट बाय 20 फीट की ये झोंपड़ी रही होगी। इसके बाहर चारों दिशाओं में निर्जन वन है, घनघोर जंगल, जहां पर आपके अतिरिक्त और कोई भी मनुष्य नहीं है। आप इसी झोंपड़ी से भाग रहे थे, इसी का आपको डर था, यहीं पर आपको नहीं आना था। किंतु अब आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जहां पर भी आप दृष्टि डाल पा रहे हैं, वहां पर मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं है। रात हो चुकी है, घनघोर रात, आकाश में कोई चंद्र नहीं है।
अमावस्या की काली रात है। रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। आप अपने मन के उस अंधेरे कोने में पहुंच चुके हैं जिसे आपने कई सालों पहले या महीनों पहले दबा दिया था। ये वो कोना है, ये वो स्थान है जिसे आप कभी भी रिविजिट नहीं करना चाहते थे, जिसकी मुलाकात आप कभी नहीं लेना चाहते थे। ये वो स्थान है जो आपके जीवन का एक सबसे अंधेरे अध्याय के साथ जुड़ा हुआ स्थान बन चुका था, और अभी तक आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ पर पाँव रखने की। किंतु आज वह अज्ञात शक्ति, वह दैवीय शक्ति आपको उस कोने की ओर, उस स्थान की ओर, उस अंधेरे की ओर फिर से एक बार धकेल रही है। आसपास मात्र जंगली पशु, प्राणियों के दहाड़ने की आवाज आ रही है। अंधेरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, किंतु उस झोंपड़ी में एक छोटा सा लालटेन, एक छोटा सा दीप प्रज्वलित है, जिसके प्रकाश को देखकर आप उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वही एक छोटा सा लालटेन आपके मार्ग को, आपके रास्ते को प्रशस्त कर रहा है। बड़े बड़े वृक्षों के बीच से, पेड़ के बीच से निकलकर आप उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस परिस्थिति से आप पीड़ित थे, उसके कारण आपके हाथों और पैरों में छाले पड़े हुए हैं। आपके चेहरे के ऊपर से खून बह रहा था, और ये छाले निरंतर आपको पीड़ा देने का काम कर रहे हैं। किंतु फिर भी अब आप रुकना नहीं चाहते। कोई अज्ञात शक्ति आपको जैसे धकेल रही है, पीछे से धक्का दे रही है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जहां पर वो झोंपड़ी खड़ी है। बड़ी ही थकान के साथ, हताशा के साथ, निराशा के साथ, और जीवन के सबसे दुखी पलों को साथ में लेकर बड़ी मुश्किल से आप उस कुटिया तक पहुंच चुके हैं। अब आपके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अब आपका मन इतना थक चुका है कि एक कदम और
आगे बढ़ने की कोई ऊर्जा नहीं रही। उसी क्षण आप उस कुटिया के द्वार पर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, थक कर, हार कर, जीवन से दुखी होकर। आप में हिम्मत नहीं रही कि आप उस कुटिया के द्वार को खोले और अंदर जा पाए। उसी क्षण उस कुटिया का द्वार अपने आप खुल जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोल दिया हो। अंदर झांकने पर ये मालूम होता है कि वहां पर एक छोटा सा पलंग है और उस बिस्तर पर एक बूढ़ी अम्मा, वृद्ध स्त्री सोई हुई है, सफेद साड़ी में, जिसके ऊपर बहुत सारे दाग हैं। वो साड़ी कई जगहों से फट चुकी है। उनके चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियां हैं। आंखें बिल्कुल अंदर जा चुकी हैं। वृद्धावस्था की चरम सीमा पर वे पहुंच चुकी हैं। उनके हाथ और पैर इतने पतले हैं मानो सिर्फ हड्डियां हो, और एक हाड़ पिंजर की तरह, अस्थि कंकाल की तरह वे अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। किंतु फिर भी उनके शरीर पर एक अदम्य तेज है। उनकी आभा इतनी ज्यादा है कि सूर्य को भी शर्मा जाए। वृद्ध होने के बावजूद उनके ललाट पर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। उस कुटिया के आसपास अब मात्र आप कौवे के स्वर को सुन पा रहे हैं। बहुत सारे कौवे, इतने कौवे कि आज तक हमने कभी ना देखे हो। ये सभी कौवे एक साथ मिलकर आवाज कर रहे हैं और उस झोपड़ी के ऊपर चक्कर काट रहे हैं। वो वृद्ध स्त्री अपने बिस्तर पर से खड़े होकर आपके समीप आती है। आप नीचे बैठे हुए हो द्वार के पास, कंधों के ऊपर हाथ रखकर बल के साथ आपको फिर से एक बार उठने के लिए हिम्मत देती है। आपके बाएं हाथ को पकड़कर वे आपको अंदर लेकर जाती है।
जैसे ही आप अंदर गए, तुरंत उस कुटिया का द्वार फिर से एक बार अपने आप बंद हो जाता है। वो स्वरूप अपनी कुटिया से मटके में से पानी का एक छोटा सा गिलास भरकर उस छोटे से पात्र में आपको जलपान कराने के लिए आग्रह कर रही हैं। उनके इस आग्रह में माँ की ममता छिपी हुई है कि शायद वो पहचान चुकी हैं कि आप अब अपने जीवन से थक चुके हैं, हार चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं। उनके हाथ से जल का पात्र लेकर आप एक ही घूंट में वो पानी पी चुके हैं। पानी की वो प्रत्येक बूंद आपके शरीर में नवीनतम ऊर्जा को स्थापित कर देती है। शरीर के प्रत्येक कण में ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन है अम्मा, और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। ये जानने के बावजूद कि ये स्थान मेरे लिए कितना दुष्कर है, ये जानने के बावजूद कि इस स्थान पर मैं कभी नहीं आना चाहता था, इस परिस्थिति को, इस घटना को मैं कभी याद नहीं करना चाहता था, फिर भी आपने यहाँ पर क्यों बुलाया। क्या कारण रहा उस समय पर। उस वृद्धा ने हंसकर जवाब दिया कि मेरा तो काम ही है तुम्हारे जीवन में आए कष्ट को हरना, किंतु जब तक तुम स्वयं की वास्तविकता का सामना नहीं करोगे, जब तक स्वयं युद्ध के मैदान में उतरकर शत्रु की आंखों में देखकर उससे युद्ध नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाती। भय का नाश करने के लिए उसकी आंखों में देखना पड़ता है। देखो मेरी आंखों में, मैं तुम्हारा वही छिपा हुआ भय हूँ, मैं वही डर हूँ जिससे तुम नजरें छिपा रहे थे। किंतु एक बार आज तुमने अपने भय का सामना कर लिया, और फिर जीवन में किसी बात से हताश नहीं होगी। कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। किसी भी परिस्थिति में तुम कभी दुखी नहीं होगे। इतना कहकर वो माँ आपके सिर को सहलाती है और अपने दोनों हाथों से आपके दोनों हाथों गालों के ऊपर हाथ रखकर अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करती है। उनकी आंखों में
आप वो सारे क्षण देख पा रहे हैं जिससे आप अत्यंत ज्यादा दुखी हो चुके थे। उन व्यक्तियों को देख पा रहे हैं, उन वस्तुओं को देख पा रहे हैं, उन घटनाओं को देख पा रहे हैं जो शायद पिछले कुछ समय से आपने अपने मन में दबा दिए थे। तो इस बार नजरें चुराने की बजाय आपके भीतर एक अदम्य शक्ति का संचार हो रहा है जो आपको इस क्षण का साक्षी बनने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये वो शक्ति है जो साक्षात ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सक्षम है। ये वो शक्ति है जो बड़े बड़े असुरों का वध करने के लिए सक्षम है। ये वो शक्ति है जिसकी गोद में अनेक ब्रह्मांड पनपते हैं, खिलते हैं और समा जाते हैं। यही तो है निरंजना, निर्विकारा, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, जो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है। यही तो है। उन्हीं की आंखों में आप झांक रहे हैं और स्वयं के प्रतिबिंब को देख पा रहे हैं। ये वो माँ है जो आपको स्वयं से लड़ने की हिम्मत देती है। ये वो माँ है जो स्वयं के असुरों का वध करने के लिए आपको प्रेरणा देती है। ये वो माँ है जो हमेशा हमेशा के लिए आपके डर को काट देती है। एक ही प्रहार से वे आपके जीवन के सभी दुखों का नाश कर देती है। अश्रुपूर्ण आंखों से आप देवी माँ को देख रहे हैं। उसी समय पर माँ कहती हैं कि आज के बाद अब तुम्हारे जीवन में जब कभी भी दुखों के बादल मंडराएंगे, तब तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। जीवन की सभ्य अनिश्चितताओं को दूर कर मैं तुम्हें परम वैराग्य का भाव अर्पण करूंगी। तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भग एवं समस्त समृद्धियों को लाकर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगी। तुम्हारे पास जो संपदा होगी उसे तुम बटोरते बटोरते थक जाओगे, लेकिन बटोर नहीं पाओगे। आज के बाद मैं अर्थात देवी धूमावती तुम्हारे साथ एकाकार होकर इस जगत में विचरण करेंगी। तुम्हारे अंतर मन के शत्रु, तुम्हारे अपने डर, तुम्हारे अपने विकार
एवं नकारात्मक वृत्तियां अब मुझसे थर थर कांपेंगी। भौतिक जीवन में अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मैं वचन देती हूँ तुम्हें कि जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तब तब तुम मुझे अपने पास पाओगे। हृदय में विराजमान विद्यमान पाओगे। और इसी के साथ देवी माँ धूमावती तेजोपुंज बनकर, दिव्य ज्योत बनकर आपके अनाहत चक्र में समाहित हो जाती है। और एक ही झटके में आपका अस्तित्व झंझोड़ कर रख देती है। उस एक ही क्षण में आप अपने सारे भय से मुक्त हो चुके हैं। इस स्थान से आप डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, जिसके बारे में आप कभी विचार तक नहीं करना चाहते थे, वो स्थान भी अब आपको डरा नहीं पा रहा। अब वो भय हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। आप अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं जो देवी माँ के द्वारा प्रदान की गई है। ये वो ऊर्जा है जिसके सामने देवता और असुर मस्तक झुकाते हैं। ये वो परम ऊर्जा है, परम शक्ति है, पराशक्ति है, जिनके सामने त्रिदेव भी मस्तक झुकाते हैं। साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिनकी पूजा करते हैं। अब वो महाशक्ति आपके अंतर मन में समाहित हो चुकी है। और उसी भाव के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर आप उस कुटिया से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आकर क्या देखते हैं, जिसे आप एक जीर्ण क्षीर्ण झोंपड़ी मान रहे थे, कुटिया मान रहे थे, वो वास्तव में एक सुवर्ण का बना हुआ महल था, जिसे आप अपने डर के कारण देख नहीं पा रहे थे। देवी माँ धूमावती उसी भय से मुक्त कराकर, उसी अंधेरे कोने से मुक्त कराकर आपको स्वर्ण की ओर लेकर आई है। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। एक नए जीवन का सूर्योदय, नए कल का सूर्योदय, नई आशाओं का सूर्योदय, स्वयं के अस्तित्व का सूर्योदय। ये वो सूरज है जो अब कभी अस्त नहीं होगा। ये वो सूरज है जो अब कभी भी आपके जीवन को अंधकारमय नहीं होने देगा। ये वो सूरज है जो आपके जीवन को हमेशा दिव्य प्रकाश से भरा रखेगा। जिसे आप निर्जन वन मान रहे थे, वो वास्तव में एक वन में परिवर्तित हो चुका है, और वो भी फूलों से भरा हुआ वन, कदम्ब वन, जिसे आप
कौवे मान रहे थे, वो वास्तव में मोर का स्वर था। कई सारी कोयल उस वन में आलाप गा रही हैं। खूंखार पशु और प्राणी भी मित्र भाव में वहां पर विचरण कर रहे हैं। उन्हें देखकर भी अब आपके मन में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। जैसे माँ धूमावती ने आपके डर को अपने भीतर समाहित कर आपको संपूर्णतया अभय वरदान दे दिया, अभय का दान दे दिया, आपको निर्भय बना दिया और इस संसार में मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर, परम स्वतंत्र होकर विचरण करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर दी। उस स्थान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए फिर से एक बार अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। धीरे 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 दोनों आंखों के बीच में पूर्ण एकाग्र चित्त होकर आप देवी माँ को ध्या रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। जिस स्वरूप को आपने देखा, उस वृद्धा के स्वरूप को अंतर्मन में विद्यमान कर रहे हैं। इसी स्वरूप के साथ अब आप जीवन में हमेशा उन्मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि साक्षात ज्येष्ठा जो अलक्ष्मी है, जो दारिद्र्या है, जिन्होंने आपकी दारिद्रता को, आपके मन की गरीबी को, आपके डर को हर लिया है, अपने भीतर समाहित कर लिया है और आपको अभयदान दिया है, वो साक्षात अलक्ष्मी, वही धूमावती अब आपके भीतर प्रत्येक कोश में, प्रत्येक मांसपेशियों में, प्रत्येक अंगों में, लहू के प्रत्येक कणों में दौड़ रही है शक्ति के स्वरूप में। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से एक बार इनहेल, एक्सेल। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो देवी माँ धूमावती के साथ श्री सुक्तम जो है वो एक प्रगाढ़ तौर पर जुड़ा हुआ है। श्री सुक्तम में जो हमारी 8वीं ऋचा है वो क्या कहती है? श्रुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम् अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुद में गृहात्। श्री सुक्तम एक ऐसा स्तुति गान है, एक ऐसी साधना है जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। किंतु उसमें भी स्पेसिफिकली 2 ऋचाएं ऐसी हैं जो माँ अलक्ष्मी को दर्शाती हैं।
उन्हें एड्रेस करती हैं। 8वीं ऋचा क्षुत पिपासा मलाम, जो जागृत की थी महर्षि नारद ने, देवऋषि नारद जी ने। तो भगवान विष्णु ने जब देवऋषि नारद जी को कहा कि अब आप श्री सुक्तम की एक ऋचा को जागृत कीजिए, तब देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु नारायण, मैं तो आपका भक्त हूँ, और मैंने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में, आजीवन आपके अतिरिक्त और किसी की पूजा अर्चना नहीं की। तो मुझे नहीं पता कि मैं वहां लक्ष्मी की पूजा कैसे करूंगा, उनकी आराधना कैसे करूंगा। उस समय पर उन्होंने इस 8वीं ऋचा को जागृत किया, क्योंकि उनका मानना ये था, यदि मैं माँ लक्ष्मी की उपासना ना कर पाऊं, कोई बात नहीं, किंतु अपने अंतर मन की गरीबी को, अपने दारिद्रता को मैं जरूर दूर कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, सुत पिपासा मलाम जयेष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम्। मेरे भीतर जो अलक्ष्मी निवास कर रही हैं, मेरे मन के जो नकारात्मक भाव हैं, विकार हैं, विचार हैं, वृत्तियां हैं, उसे आप नष्ट कर दीजिए माँ लक्ष्मी। उन्होंने माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना की कि मेरे भीतर से ये जो भाव है उसे दूर कर दीजिए। अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुद में गृहात। मेरे घर में जितने भी अभूति कारक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, अभूति अर्थात जिनसे कोई लाभ नहीं हो सकता, जिनसे कोई अ, जीवन में आप फल प्राप्त नहीं कर सकते, जो असमृद्धि कारक पदार्थ है, उसे मेरे घर से दूर लेकर जाइए। निर्णोद में गृहात, अर्थात मेरे घर से इन्हें दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए इसे, इसका विनाश कर दीजिए। ये एक ऋचा थी। उसके बाद जो 5वीं ऋचा है, चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणे। यहाँ पर भी ये प्रार्थना की गई कि मेरे घर पर, मेरे अस्तित्व में, मेरे स्वयं की आत्मा में, मेरे अंतर्मन में, मेरे चित्त में जितने भी अलक्ष्मी कारक वस्तुएं हैं, तत्व हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणे, उनका आप नाश कर दीजिए माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पर सोचने लायक, ध्यान देने लायक बात यह है, रोचक बात यह है कि यदि श्री सुक्तम को हम शुभ मानते हैं, परम पवित्र मानते हैं, उसकी हम साधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को आवाहन देते हैं, तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि इसी श्री सुक्तम में हम माँ धूमावती को भी याद करें? क्या जरूरत आन पड़ी कि इसी श्री सुक्तम में हम अलक्ष्मी को भी याद करें? वो कहा जाता है ना कि जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता, तब तक आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने बचपन से कभी संघर्ष देखा ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि पैसों का ना होना क्या होता है, जिसे पता ही नहीं है कि यदि भरपेट भोजन ना मिले तो क्या अनुभूति होती है, वो कैसे समझ पाएगा सुख की परिभाषा को? वो कैसे समझ पाएगा सुविधा की व्याख्या को? जब तक उसने अपने जीवन में अभाव को नहीं देखा, तब तक वो स्वभाव को कैसे देख पाएगा, कैसे समझ पाएगा? यदि किसी परिवार के बच्चे ने बचपन से अपने जीवन में मात्र समृद्धि देखी है, तो बहुत सारे किस्से आज के समाज में भी हैं हमारे आसपास, जिनको देखने भर से हम ये कहते हैं कि बचपन से कभी संघर्ष देखा नहीं, और बाद में आगे चलकर पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क कैसे करते हैं, मेहनत कैसे करते हैं, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं, और सिखाते तब जब दिखाया होता। तो इसी कारण से यहाँ पर भी श्री सुक्तम में इसी बात को दर्शाया गया है। श्री सुक्तम भी द्वैतवाद को ही डेपिक्ट करता है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों को व्याख्यायित करता है, ताकि जीवन में दोनों का महत्व आपको पता चले कि जब तक एक को नहीं देखा, तब तक दूसरे को नहीं
देखा जा सकता। यदि जीवन में प्रकाश देखा ही नहीं है आपने, तो कैसे व्याख्यायित कर पाएंगे? यदि अंधकार देखा ही नहीं है, तो सूर्योदय का महत्व कैसे पता चलेगा? 24/7 अगर सिर्फ आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो, क्या आप सो पाएंगे ढंग से? 24/7 यदि आकाश में मात्र चंद्रमा हो, तो क्या आपको काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी? क्या आप उठकर हर दिन एक नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे अपने जीवन की? क्या आपको उसी उत्साह के साथ काम पर जाने की प्रेरणा मिलेगी, जिस प्रेरणा के साथ आप सुबह उठकर जाते हैं काम पर? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्व है। रात्रि के दौरान शरीर को आराम चाहिए, और सुबह उसे काम पर लगाना है। ये जो द्वैतवाद है, ये जो द्वैत प्रकृति है, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए चाहे लक्ष्मी हो, चाहे अलक्ष्मी हो, दोनों का हमारे जीवन में समान महत्व है, एक समान महत्व है। तो इसी के साथ वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन, बट बिफोर वी डू दैट हम एक Q&A करेंगे विथ विक्रम। सो विक्रम, यू कैन नाउ टेक ओवर। Thank you, Brahmachari ji. So we'll have a short Q&A session today. Uh, just give me a second. Anji. So one of the questions that came through yesterday, Brahmachari ji, is uh, one of the sadhaks was sharing that they are unable to control sleep while mantra chanting, and how could one tackle this? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप बहुत बड़ा संकल्प ले ले और आपको ये लगे कि मैं आज ही बहुत बड़ा साधक बन जाऊंगा, आज ही अपने आप को सिद्ध कर लूंगा, तो एक रात 4 साल 5 साल देने ही पड़ते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते, अच्छे साधक बनना चाहते हैं, तो समय तो देना पड़ेगा। एक रात में, एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में आप लीड कर सकते हैं, बट बैचलर नहीं हो सकते। तो बैचलर्स के लिए आपको कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल देने पड़ेंगे। मास्टर्स करना चाहते हैं तो उससे भी ज्यादा आपको 2-3 साल और देने पड़ेंगे आफ्टर बैचलर्स। उसके बाद आप PhD करना चाहते हैं तो और भी समय देना पड़ेगा विथ अ बेबी स्टेप। आप ये संकल्प मत लीजिए कि आज मैं 2 घंटा बैठ जाऊंगा, 1 घंटा बैठ जाऊंगा। जस्ट डू इट फॉर 10 मिनट्स, 50 मिनट्स एवरी सिंगल डे। अनुभूति हो ना, तब ज्यादा आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, वो बहुत ही स्वाभाविक घटना है। तो पहले तो ये तय कीजिए कि कौन सा ऐसा समय है जहां पर आपको नींद नहीं आती। पहले के समय में, पूर्वाश्रम की मैं बात करूं तो मैं आई वॉज अ नाइट पर्सन। मैं एक निशाचर प्राणी हुआ करता था, जो 4 बजे 4:30 बजे सोने के लिए जाता सुबह, और जिसका उठना 8 9 10 बजे होता था। तो उस समय पर मुझे रात की साधना ज्यादा भाती थी, और मैंने अपने बहुत लंबे समय के लिए, बहुत सालों तक मैंने रात को ही साधना की है अपनी, क्योंकि वो समय ऐसा था जहां पर मुझे नींद नहीं आती थी। किंतु अब मुझे कोई सुबह अगर उस समय पर बोल देता कि आपको सुबह उठकर साधना करनी है, तो मैं नींद के साथ ही साधना करता। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बिना नींद के साधना कर पाऊं। तो एसेंस ये है कि अब जब मैं, मान लीजिए, सुबह का मेरा स्केड्यूल हो चुका है, अब मेरी साधना सुबह भी चलती है। तो जब आपको पता है कि मैं सुबह कन्वीनियंट मेरे लिए होता है साधना, मेरे लिए रात को साधना कन्वीनियंट होती है, काम के हिसाब से, पूरे दिन की जिम्मेदारियों के हिसाब से, यू चूज योर टाइम कि आप कौन से समय पर अच्छा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और इसी के साथ आप 5 मिनट
7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू कीजिए। बहुत बड़े संकल्प मत लीजिए। छोटा संकल्प लेंगे, लेकिन जब वो पूरा होगा आएगा थोड़ा और बड़ा संकल्प लेने के लिए। 10 मिनट का संकल्प लिया, वो जब आप पूरा करेंगे, आपको अंदर से एक आवाज आएगी, हेल्प मिलेगी कि अब मैं 15 मिनट का संकल्प लूंगा। 1, 2, 3 महीने तक वही स्केड्यूल चलाइए। उसके बाद एक फिर से नया नया संकल्प लीजिए कि अब मैं आधे घंटे के लिए बैठूंगा। इस तरीके से जब आप 1 साल, 1.5 साल के अंत में पहुंचेंगे, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप वो टारगेट जो है उस टारगेट तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे, और वो भी बहुत इजीली। तो अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, स्ट्रेच मत करिए। जितना हो सके उतना अपने कन्वीनियंस में रहकर शुरुआती दिनों में कंफर्ट जोन में रहना ही पड़ता है। जब कंफर्ट जोन में रहेंगे, साधना करेंगे, एक आदत लग जाएगी। उस आदत के लग जाने के बाद जब मन को अब हो चुका है कि अब मैं साधना के बिना रह नहीं पाऊंगा, उसके बाद थोड़ा 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 अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू कर दीजिए। सो दिस इज माय आंसर। Thank you, Brahmacharya. There, there's a bit of a network issue, I believe. So I think we will also take some more questions tomorrow. I just have two more questions, Brahmacharya. One is it necessary to have uh, Bhairav Baba's, permission in a way before invoking any form of Ma is being asked by somebody? नॉट एट ऑल। आपको कभी भी भैरव की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। कहा गया है महाभैरव पूजिता, माँ का एक नाम है। वहां पर बात हो रही है भगवान सदाशिव की, जो महाकाल है, उनकी बात हो रही है। यदि आप 13 मंथ्स इन हिमालयास पढ़ेंगे, वहां पर भी स्वामी जी ने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, ब्रह्मांडीय महाविद्या है, उनको जागृत करने से पहले भी भैरव का कोई अनुष्ठान नहीं किया था। तो ये एक बात अपने आप में इनफ है ये सूचित करने के लिए, यू डोंट नीड टू डू एनी भैरव अनुष्ठान, एनी भैरव जपा, टू इन्वोक एनी फॉर्म ऑफ माँ, एनी फॉर्म ऑफ महाविद्यास। सो फील फ्री, जस्ट focus on the ma, just focus on the Mahavidya, keep doing your sadhana, and that's more than enough. Sounds good, Brahmacharya. I think we are on time. We will take a few more questions tomorrow. Vikram, am I, Yes, there seems to be some network issue. was I audible enough? Yeah. Hanji, there is some network issue, I believe. So I think tomorrow we can look Okay. at it. The good thing is, although there were minor issues during, I think overall it was perfectly fine. And tomorrow we will take up more questions so that every question is answered. Thank you so much, Brahmacharya. Thank you everyone for attending the session. Really grateful. So we will meet you tomorrow again, same time, 8 o'clock. So have a good evening and happy chanting. Jai Shri Ram. Thank you so much. Jai Shri Hari. Om Shri Matre Namaha.